برطانوی شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ مڈلٹن پاکستان پہنچ گئے۔ شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ مڈلٹن نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور عمران خان سے ملاقات کی۔ حکومت کی موسمیاتی تبدیلی اور غربت کے خاتمے کے اقدامات کی تعریف کی۔ شاہی جوڑے نے اسلام آباد میں سرکاری اسکول کا بھی دورہ کیا، بچوں سے ملاقات کی اور اساتذہ سے مصافحہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں ہو چی سن پورٹ ہولڈنگ کمپنی نے پاکستان میں $240 ملین سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ نئی سرمایہ کاری سے 3000 ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے عمان کی مسلح افواج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ عمانی جنرل احمد کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیاں گراں قدر ہیں۔ پاک فوج کا خطے میں امن و استحکام کے لیے کردار قابل ستائش ہے۔ ایران سعودی عرب کشیدگی ختم کرانے کا مشن، وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کے لیے روانہ۔ عمران خان سعودی قیادت کو دورہ ایران میں پیش رفت پر اعتماد ملیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، معاون خصوصی زلفی بخاری، سیکریٹری خارجہ اور دیگر حکام بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کے اشتعال انگیز بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام مادر وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ان کا بیان انتہا پسندی اور طاقت کے نشے میں چور سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع ایک خود مختار ریاست کو توڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ کوئٹہ میں ڈبل روڈ پر نادرا آفس کے قریب زوردار دھماکہ، دھماکے میں 10 افراد زخمی ہوئے جبکہ ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ پاکستان ایسوسی ایشن آف لا سال کی جانب سے سالانہ فیملی پارٹی کا انعقاد۔ پارٹی رنگا رنگ پروگرام سے بھرپور مسٹر میجک کو بچوں کی تفریح کے لیے خاص مدعو کیا گیا تھا۔ ملک سے باہر بے نامی جائیداد رکھنے والے پاکستانی بھی FBR کے ریڈار پر۔ چیئرمین FBR شبر زیدی کہتے ہیں بے نامی جائیدادوں کے خلاف آرڈیننس تیار کر لیا، کارروائی کو تیز کرنے کے لیے آرڈیننس لایا جائے گا۔ پاکستانیوں کی جائیداد سے متعلق معلومات پر دبئی میں میٹنگ ہوئی ہے۔ ملاقات میں طے ہوا کہ دبئی کا لینڈ ڈپارٹمنٹ فوری معلومات فراہم کرے گا۔ عثمان بزدار کی زیر صدارت عرفہ کریم ٹیکنالوجی پارک میں اجلاس۔ پنجاب میں ڈینگی صورتحال، مرض کے تدارک کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت کی کہ انسداد ڈینگی کے لیے متعلقہ ادارے اپنا بھرپور کردار جاری رکھیں۔ انسداد ڈینگی کے اقدامات میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈالر کی چوری چھپے بیرون ملک منتقلی پر دہشت گردی اور منی لانڈرنگ کے مقدمات درج کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسٹیٹ بینک نے تجارت سے متعلق قوانین پر فریم ورک تیار کر لیا۔ فریم ورک کا مقصد فورن ایکسچینج کے غلط استعمال اور ضیاع کو روکنا ہے۔ فضل الرحمان سے بھی بات چیت جاری ہے اور دوسرے لوگوں سے بھی جاری ہے۔ ممکن ہے مولانا فضل الرحمان کو کشمیر کی ریلی نکالنے کے لیے، دھرنے کے لیے نہیں، دھرنے کی اسلام آباد میں گنجائش نہیں ہے۔ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، فضل الرحمان اور دیگر سے رابطے جاری ہیں۔ 23 یا 26 اکتوبر کو آزادی مارچ سے متعلق رائے دوں گا۔ شہباز شریف وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا شہزادہ مولویوں سے ڈرا ہوا ہے، وہ اس طرف نہیں جائے گا۔ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو۔ سکھر کی احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثہ کیس میں خورشید شاہ کو مزید 6 روز کے لیے نیب کے حوالے کر دیا۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ خورشید شاہ کے 3 بینک اکاؤنٹ مل گئے ہیں جس میں 28 کروڑ روپے ہیں۔ خورشید شاہ سے پوچھا کہ آمدن کے ذرائع بتائیں تو کہتے ہیں خاندان سے پوچھ لو۔ مولانا کے دھرنے کا مقصد احتساب کا عمل روکنا ہے۔ مولانا چاہے جو بھی کر لیں، احتساب نہیں رکے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشکل فیصلوں سے ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا۔ پاکستان مقروض ضرور ہے لیکن غریب نہیں ہے، صوبائی وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی۔ ہنگو کی تحصیل ٹل میں کئی مہینوں سے روڈ کا کنارہ بارشوں کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ MPS ظہور شاکر کی کوششوں سے روڈ کے کنارے پر تیزی سے کام شروع کر دیا گیا۔ السلام علیکم، DNN نیوز کے ساتھ میں ہوں رضوان باسط۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، مزید خبریں ہوں گی ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
برطانवी शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन ने वफाकी दारुल-हुकूमत में मसरूफ दिन गुजारा और अहम शख्सियात से मुलाकातें की। शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और इमरान खान से मुलाकात की, जबकि हुकूमत के मौसमियाती तब्दीली और गुर्बत के खात्मे के इक़दामात की तारीफ की। शाही जोड़े ने इस्लामाबाद में सरकारी स्कूल का भी दौरा किया, बच्चों से मुलाकात की और असातिज़ा से मुसाफहा किया। शाही जोड़ा अलग अलग मेज़ों पर बच्चों के साथ बैठ गया और उनमें घुल मिल गया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से हांगकांग पोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी के वफ़द की मुलाकात हुई। मुलाकात में होचिसन पोर्ट होल्डिंग कंपनी ने पाकिस्तान में $240 मिलियन सरमायाकारी का ऐलान किया, जिस पर वज़ीर आज़म ने कंपनी की सरमायाकारी मुल्की मुआशी खुशहाली के अज़्म का खैर मक़दम किया। अलामिया में कहा गया कि होचिसन पोर्ट होल्डिंग कराची पोर्ट पर टर्मिनल की इस्तेदाद में इजाफा करेगी। हांगकांग कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी को $1 अरब तक ले जाएगी। ISPR का कहना है कि ओमान की मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अहमद ने GHQ का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ओमान की मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह की मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ओमानी जनरल अहमद का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कामयाबियाँ गिरां क़द्र हैं। पाक फ़ौज का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म इमरान खान खुसूसी तैयारे से सऊदी अरब रवाना हो गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मावन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी, सेक्रेटरी ख़ारजा और दीगर हुक्काम भी उनके हमरा हैं। इमरान खान दौरे के दौरान सऊदी फरमारवां शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें करेंगे और दौरा ईरान में पेशरफ्त पर एतमाद मिलेंगे, जबकि दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई उमूर पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जारी बयान में कहा कि भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ का पाकिस्तान की सियासत से मुताल्लिक़ बयान इश्तियाल अंगेज़ और BJP हुकूमत के जहन की अक्कासी करता है। उनका बयान इंतहा पसंदी और ताकत के नशे में चूर सोच की अक्कासी करता है। भारतीय वज़ीर दिफ़ा एक खुद मुख्तार रियासत को तोड़ने की धमकियाँ देता है। पाकिस्तान राजनाथ सिंह के बयान की शदीद मज़म्मत करता है। कोयटा में डबल रोड पर नादरा ऑफिस के करीब धमाके के बाद गाड़ी में आग भड़क उठी। धमाके से एक रक्षा और 5 मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। वाक़े की इतला मिलने पर पुलिस और तफ्तीशी इदारों के एहलकार मौके पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंचकर धमाके के शवाहिद इकट्ठे कर रही है। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लासाल की जानिब से सालाना फैमिली पार्टी का इनेकाद हुआ। मिनिस्टर ऑफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल ऑफ कैनेडा डेविड लामाती, MP एंजोडलन और सिटी काउंसलर ने शिरकत की। पार्टी रंगारंग प्रोग्राम से भरपूर मिस्टर मैजिक को बच्चों की तफरीह के लिए खास मदऊ किया गया था। चौधरी शाहिद फाइडो, चौधरी अनायत की तरफ से बच्चों में तहाइफ तकसीम किए गए। पार्टी में कम्युनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। वज़ीर इंसाफ डेविड लामाती ने हुकूमत की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। MP एंजोडलन ने कहा कि सब अपना वोट डालें, जबकि काउंसलर ने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी मेरी फैमिली की तरह है। मेहमानों और मेंबरान की तवाज़ो पुरतकल्लुफ़ अशाइये से की गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन शब्बर जैदी का कहना है कि बेनामी जायदादों के खिलाफ ऑर्डिनेंस तैयार किया गया है। बेनामी कानून में कोई बड़ी तब्दीली नहीं कर रहे। IMF टीम के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। IMF को टैक्स के महसूलात पर मुतमईन कर लेंगे। ताजिरों के साथ कोई डेड लॉक नहीं है। कारोबार में आसानी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत अरफा करीम टेक्नोलॉजी पार्क में इजलास हुआ, जिसमें पंजाब में डेंगी सूरत हाल मर्ज़ के तदारुक के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। सरदार उस्मान बुज़दार ने मरीजों को इलाज की सहूलतें मज़ीद बेहतर बनाने के प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया और इंसदाद डेंगी वायरस के लिए मौसर अंदाज में सर्वेलेंस जारी रखने की हिदायत भी की। उन्होंने कहा कि इंसदाद डेंगी के लिए मुताल्लिक़ा इदारे अपना भरपूर किरदार जारी रखें। वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में डेंगी केसेस की कुल तादाद 30,000 से तजावुज़ कर गई है। अब तक डेंगी से 47 अमवात हो चुकी हैं। सरदार उस्मान बुज़दार यंग डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज के मुतालिक कहा कि यंग डॉक्टर्स के एहतजाज का कोई जवाब नहीं है। स्टेट बैंक ने करार दिया है कि तजारत की आड़ में डॉलर की चोरी छुपे बैरून मुल्क मुंतकली दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग है। फ्रेम वर्क की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 23 या 26 अक्टूबर को आज़ादी मार्च से मुताल्लिक़ राय दूंगा। शहबाज शरीफ विकेट के दोनों अतराफ खेल रहे हैं।
उनको कहता हूं कि विकेट की एक तरफ खेलें। फजलुर रहमान डंडा बरादर लोग इस्लामाबाद लाकर दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पीपल्स पार्टी का शहजादा मौलियों से डरा हुआ है और उस तरफ नहीं जाएगा। कश्मीर पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। पाक फौज हर लम्हा किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सक्खर की एहतसाब अदालत में पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह के खिलाफ आमदन से जायद असासा केस की समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि खुर्शीद शाह के 3 बैंक अकाउंट मिल गए हैं, जिसमें 28 करोड़ रुपए मौजूद हैं। खुर्शीद शाह से पूछा कि आमदन के जराए बताएं तो कहते हैं कि खानदान से पूछ लो। खुर्शीद शाह अवामी शख्सियत हैं, उनको जवाब देना होगा। मजीद तफ्तीश के लिए मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड में 15 रोज़ की तौसी की जाए। जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर मैं आपको पूरे 90 दिन का भी रिमांड दे दूं तो फिर भी आप सिर्फ इल्ज़ामात की फहरिस्त लगाएंगे। फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद खुर्शीद शाह के जिस्मानी रिमांड में 6 रोज़ की तौसी कर दी। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मुश्किल फैसलों से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। पाकिस्तान मकरूज़ ज़रूर है लेकिन गरीब नहीं है। अपोजिशन ने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क को कर्ज़ों में डुबोया। मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ। मौलाना आज़ादी मार्च किस लिए कर रहे हैं? मौलाना के धरने का मकसद एहतसाब का अमल रोकना है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में करप्ट अफराद का ठिकाना सिर्फ जेल है। मौलाना चाहे जो भी कर लें, एहतसाब नहीं रुकेगा। हंगू की तहसील टल में कई महीनों से रोड का किनारा बारिशों की वजह से टूट फूट का शिकार था, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। जब भी बारिश होती थी तो ये रोड का किनारा एक बड़े कुएं का मंजर पेश करने लगता था। MPS ज़हूर शाकिर की कोशिशों से नाजिम रफ़ीउल्लाह, नाजिम ज़हीन बादशाह और सिटी सदर सादिक शाह की ज़ेर निगरानी में रोड के किनारे पर तेज़ी से काम शुरू कर दिया गया। इलाका मकीनों ने तरक्याती काम पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले तरक्याती कामों में भी MPS ज़हूर शाकिर मुस्बत किरदार अदा करेंगे। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानना चाहें तो विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। खबर हमसे है।